بسم اللہ والصلاة والسلام الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر رمضان کا ایک عمل ہے، اس کا تعلق رمضان کے بعد سے ہے، یعنی جب آدمی رویت حلال دیکھ لیتا ہے تو اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے عید سے پہلے کہ فطرہ نکالے۔ فطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی افطار کا دینا، روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد ہی نکالا جاتا ہے، تو یہ مال کا حق نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے اپنی انسان کی۔ اور فطرہ زکوٰۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب روزہ ختم ہوا تو اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے، اور ایک انسان کی اپنی ذمہ ہوتی ہے، ذمہ داری سے نکالا جاتا ہے۔ یہ مال کا حصہ نہیں ہے، مال کا حق نہیں ہے۔ اچھا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، ابھی جو حدیث پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، غلام پر، جو بھی ہو سماج معاشرے، مسلم سماج معاشرے میں ہر ایک نکالے گا، یا وہ نکالے گا جو گھر کے ہیڈ ہے، اس کو محتاطی میں، اس کی ذمہ داری میں جو بھی ہوں، چاہے اولاد ہوں یا نوکر چاکر ہوں، سب کی طرف سے نکالے گا۔ یہ تو بڑا یہ مسئلہ ہے کہ نکالنا واجب ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ وقت کیا ہے اس کا نکالنے کا؟ اس کا وقت ایک جواز کا وقت ہے، یہ افضل وقت ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے عیدگاہ جانے سے پہلے تک یہ پورا پیریڈ ہے، یہ افضل وقت ہے۔ اور جواز یہ ہے کہ عید سے ایک دن دو دن پہلے، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے اگر نکالے گا آدمی تو وہ اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، یہ بھی گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے، ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عید کے دن اس کے لیے کھانا پینے کا میسر ہے، اس سے جو بچت ہو نکالے گا۔ تو بہت کم ہی ایسے بچیں گے سماج معاشرے میں اس وقت، اس کا بات کر رہا ہوں، ایک ہی علاقے میں ہندوستانی میں جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہ ہو، عموماً ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، تو بہت سے کم ایسے لوگ نکلیں گے جن کے پاس نہ ہو، یا افریقن کنٹریز ہے اور دوسری جگہ ہیں یا جہاں بھوکمری ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے بہت ان کے پاس نہ ہو، لیکن خیر یہ کس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے؟ ہر اس آدمی پر واجب ہوتا ہے جو عید کے دن دو ٹائم کا کھانا کے پاس موجود ہو اور اس سے بڑھت ہو، وہ نکالے گا، اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ کس پر کتنا نکالے گا اور کیا نکالے گا، دونوں تعین کر دی گئی ہے۔ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا جو عام طور پر انسان کھاتا ہے، جس زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں کھجور تھا یا گیہوں تھا، جو تھا، پنیر تھا، یہ سب چیزیں تھیں، تو ایک سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالو۔ ایک سا آج کے میٹرک حساب سے کوئی 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے، تو اتنا نکالے گا آدمی۔ یہ تعین ہو گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا اگر آدمی یہ جنس نکالنے کے بجائے اگر پیسہ دے دے تو کیا ادا ہو جائے گا، مانا جائے گا کہ اس نے صدقۃ الفطر ادا کیا؟ یہ کوئی کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے۔ آج جو پیسہ دینے کی بات کرتے ہیں وہ صرف دماغ کا فطور ہے، اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، نص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاع من تمر، صاع من شعیر، صاع من قمح، صاع من ارز، صاع من ناقۃ، یہ نص موجود ہے۔ نص کے ہوتے ہوئے اس کو کھینچ تان کرنا ذہنی مرض کی دلیل ہے۔ اول تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پیسہ نہیں تھا؟
क्या गरीब नहीं थे? हैं? उस ज़माने में भी पैसा था, उस ज़माने में भी गला था, उस ज़माने में भी गरीब थे, उस ज़माने में भी देने वाले थे, और उस ज़माने में निकालने वाले आज के ज़माने से ज़्यादा अफजल थे। उस ज़माने के गरीब आज के गरीब से ज़्यादा अफजल थे कि नहीं थे? तो ये तमाम सूरत हाल मौजूद है। तो वो जो हमसे अफजल थे, वो हमसे जो अच्छे थे देने वाले और लेने वाले, उन्होंने वो अख्तियार किया। और सहाबा के दौर में नहीं साबित है कि आप किसी ने जिन्स के बजाय कूद के बजाय नकूद दिया हो, एक खाने के बजाय पैसा दिया हो। तो अब वो जो सबसे अच्छा अपने ज़माने में लेने वाले और देने वाले सब अफजल थे। अगर लेने वाले अफजल थे तो उनकी ज़रूरतों को देखा जाए तो उनकी जो ज़रूरत हो उसी के हिसाब तो रखा जाएगा। तो ज़माने के जो लेने वाले गरीब व फ़ुक़रा थे वो अफजल तर थे और वो मसलिहत देने वाले ज़्यादा समझते थे, तो उन्होंने गला दिया। तो हम उससे ज़्यादा तो न मसलिहत समझ सकते हैं, न उनसे ज़्यादा लेने वाले अच्छे हैं, न देने वाले अच्छे हैं। तो मसलिहत समझने वाले और फिर ये कि अच्छे लेने और देने वाले और दोनों एक दूसरे के अच्छी मसलिहत समझने वाले जब उन्होंने गला दिया तो फिर हमको क्या करना चाहिए? दूसरी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला को ये मसला नहीं मालूम था। आज ज़माने में भी पैसा था, बल्कि अरब वो मदीना में तो ये है कि वहाँ खेती बाड़ी होती थी और गेहूँ भी पैदा होता था और वो भी पैदा होता था, क्या नाम है, खजूर और जितने जिनसे पैदा होते थे। सवाल ये है कि वो दूसरे जगहों पर तो मक्का वगैरह में तो कुछ नहीं पैदा होता था, तो वहाँ ज़्यादा तो नकदी चलता था। तो ये अगर किसी के जहन में जो फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं है, नहीं जानता है और बिला वजह फ़लसफ़ा बगाड़े कि नहीं, उस ज़माने में ये जिन्स ही नक़द की जगह थी, वहाँ जिन्स की नक़द की जगह थी। अरबों की जहाज़रानी मौजूद है, अरबियन पेनिनसुला वाले जिस बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में तजारत करते थे तो गल्ला लाद के आते थे कि गल्ला ही वो कहते हैं, वो गल्ले की जगह पर नक़द के जेवर गल्ला ही था, उसी से तामुल होता था। तो क्या वो गल्ला लाद के आते थे? इतने बड़े पैमाने पर तजारत करते थे। तो जो आदमी फाइनेंस का माहिर ना हो उसको खामखा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर एक ही नस्स हदीस देखिए, नस्स हदीस मुकम्मल है कि जब वाज़ेह है तो उसको खींचतान करने के लिए अपने तौर पर मसलहत कहाँ से निकाल लेंगे भाई? आप ज़्यादा अल्लाह के रसूल मसले नहीं जानते थे, अल्लाह ताला मसले नहीं जानते थे। आज के छोड़ भैया मसले ज़्यादा जानने लगे हैं जो 4 पैसे में दीन ईमान बेचते रहते हैं। मसलहत की बात करते हैं। फिर ये कि मसलहत भी यहीं इस हदीस में मुतय्यन है और नक़द भी मुतय्यन है और कैल भी मुतय्यन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना भी मुतय्यन किया और नाप भी मुतय्यन किया। गिनना नहीं है, यहाँ कैल है, नाप भी मुतय्यन किया और साथ ही साथ खाने वो मसलहत मुतय्यन किया कि सिर्फ़ उस जो मुहताज है ईद के दिन उसकी ज़रूरत पूरी करनी है और ईद के दिन ज़रूरत पूरी नहीं करनी, ये भी कह दिया गया। तो अमतल लिल मसाकिन, मसाकिन के लिए खाना होना चाहिए। तो 3 ढंग से तायीन हो गई ना नस में, मसलहत 3 ढंग से तायीन हो गई। एक तो नस की अपनी तक़द्दुस है, अज़मत है, आप उसको खींचतान करेंगे, पामाल करेंगे बिला वजह। कोई करीना अगर हो, कोई वजह अगर हो, तब जा कर के जो ज़ाहिरी अल्फाज है उसका दूसरा माना लिया जाता है। अगर कोई करीना मौजूद नहीं है तो आप अपने दिमाग से मसलहत निकालेंगे तो मसलहतें हर ज़माने में अलग अलग होती हैं। तो कितना खिलवाड़ करोगे अल्लाह रसूल के कलाम से? मसलहतों की कोई हद है? और फिर मसलहत की लिमिट होती है, मसलहत शरई मसलहत होती है। अब यहाँ मसलहत मौलवियों की अपनी इंपॉर्टेंस की मसलहत पैदा हो गई। हर आदमी चोंच मार रहा है मसले में, जिसको कुछ पता भी ना हो वो भी खामखा फतवा देने की कोशिश कर रहा है। कोई मुतय्यन भी नहीं किया है फिर भी कूदे जा रहा है, फतवा दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? तो ये मसलहत क्या है? ये जो मसलहत निकाल रहे हैं पैसे की, वो मसलहत क्या है? मसलहत उछल कूद मचाने की जो इम्पोर्टेंस दिखाने वाली मसलहत है। तो ये हम शरई मसाइल में अपना इम्पोर्टेंस नहीं निकालना चाहिए, बड़े काबिल हैं। यहाँ जो नस है और कोई करीना नहीं है कि उस ज़ाहिरी लफ्ज़ को छोड़ करके दूसरा माना लिया जाए। ज़ाहिरी लफ्ज़ यही ना है कि एक सा खाना होना, खाने की चीज़ होनी चाहिए, जिन्स होनी चाहिए, कूत होना चाहिए। तो वो जिन्स मौजूद है और नाप मौजूद है, तो जिन्स और नाप को छोड़ करके आप पैसा के लिए मुराद ले सकते हैं। कोई करीना मौजूद है? यही कि वहाँ खामोशी है, अल्लाह रसूल मसले नहीं जानते थे। तुम आज के 4 पैसे में बिकने वाले
अब दीन ईमान बेचने वाले ज़्यादा मसले जानने लगे अल्लाह रसूल से। तो वो करीना न वो तारीख़ी तौर पर कोई करीना है, न समाजी तौर पर कोई करीना है, न यानी गरीब और मुहताज की कोई उसकी खर्च की मसलहत का कोई करीना है। अच्छा, और ये भी एक मसला है ना, अगर आपने गरीब को दे दिया, आप तो बाउंड हैं जो नस से शरीयत है उसके मुताबिक काम करें। आपने उसको गल्ला दे दिया गरीब को, वो बाउंड नहीं है कि किस तरह खर्च करे, चाहे खाए चाहे कुछ भी करे, तो वही बेचकर फ़ौरन पैसा भी हासिल कर सकता है। तो आपको कौन सी परेशानी है? वो उसको खुद उसमें अख्तियार है, जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे। तो आप फिर नस्ल शरई को क्यों उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं? आप जिसके लिए मरे जा रहे हैं नस्ल शरई को बिगाड़ करके, वो खुद उसको दे दिया जो मुस्तहिक है, तो उसको कोई बाउंड नहीं है ना कि कैसे खर्च करे, जैसे चाहे खर्च करे, अख्तियार दिया गया है, उसको कोई बाउंड नहीं है। उसके लिए नहीं कहा गया है कि किस शक्ल में खाएगा, किस शक्ल में रखेगा, किस शक्ल में पकाएगा, कोई है फाउंडेशन? उसके फाउंडेशन नहीं है। वो बेचकर भी पैसा ले सकता है, उसको ब्लेम नहीं कर सकता कोई, क्यों बेचा? जाकर जिसने दिया है गल्ला उन्हें जाकर कह सकता, मुहासबा कर सकता, मैंने गल्ला दिया था तुमने क्यों बेचा? तो आप शरीयत वो नस्ल शरीय का खिलवाड़ क्यों कर सकते हैं? वो खुद बेच करके पैसा ला सकता है। दूसरे ये कि ख़ास वक्त के लिए वो फ़कीर की मसलियत है, ईद के दिन के लिए, और खाने के लिए तो मतलिल मसाकीन, खाने की जो मसलियत है, तो उस सबको कहाँ उड़ा देंगे? तो इस नस में कई चीज़ की तायीन है। अल्फाज सरी हैं कि सामिन तामिन होना चाहिए। फिर ये कि उसका कोई करीना ही नहीं है किसी तरह का, खारिज दाखिल का, इसलिए कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। फिर नस में कैल मौजूद है, यानी नापने का, तो आप गिनने वाला कहाँ से ले आएंगे? फिर ये कि जिन्स मौजूद है कि ये देना है, तो आप पैसा कहाँ से देने लगेंगे? फिर ये कि मसलियत ये भी है कि उस ख़ास दिन की उसकी ज़रूरत पूरी करने का मसला है कि उस दिन वो खाए, उस दिन वो हाथ फैलाने की ज़रूरत ना भागे, खुशी पूरी हो जाए। तो 4-5 ढंग से मसलियत भी इस हदीस में मुतय्यन है। तो उस मसलियत को आप नज़रअंदाज करके अपने तरफ से मसलत का है उसके ऊपर मसलत करेंगे। तो ये हुआ। अच्छा, अगर इस एक चीज़ को बगैर वजह के, बगैर करीना के और उस नस के साथ खेल करें और अपनी अपनी मसलियत की टफली लेकर के बजाना शुरू कर दें, तो सारा नस तो खेल हो जाएगा। एक दरवाज़ा तोड़ा तो सब तोड़ते चले जाइए, अपनी मनमानी करते जाइए, तो नस की हुर्मत कहाँ रह गई? नस का तक़द्दुस कहाँ रह गया? नस की अज़मत कहाँ रह गई? और दिन मैंने कहा ना कि नुसूसे दीन से तामुल की पहली शर्त एतक़ादी पहलू है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया है, तो अपने मन से किसी लफ्ज़ या मानवी की तहरीफ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सबसे पहले अक़ीदा बनता है। तो ये दिया जाता है गरीब को, और अल्लाह ताला के रसूल ने क्या फरमाया? मसलहत क्या है इसका, फ़ायदा क्या है इसका? ज़कातुल फ़ित्र का। ज़कातुल फ़ित्र का ये है कि रमज़ान के महीने में अगर आपसे कोई गलती सरज़द हो गई या रोज़े के आदाब के ख़िलाफ़ कोई बात हो गई है, तो इस तरह ज़कातुल फ़ित्र अदा करेंगे तो उसकी भरपाई हो जाएगी। और दूसरे क्या बताया? इसे बताया कि खाने का इंतज़ाम हो जाएगा गरीब मिस्कीन के लिए। तो ये ज़कातुल फ़ित्र के सिलसिले में सिंपल और सादा सा मसला। अच्छा, एक मसलहत ये भी है, आदमी जब जिन्स देगा, क़ूत देगा, ग़िज़ा देगा, तो उसके लिए कई एक्स्ट्रा अमल हैं। एक अमल तो ये है कि आप को ये कंसर्न बनेगा कि भाई कौन भूखा है? सिर्फ उसको ईद के दिन सिर्फ भूख की ज़रूरत को रखा गया सामने, और दूसरी ज़रूरत को नहीं रखा गया है। और एक साथ में क्या वो दूसरी और ज़रूरतें पूरी कर लेगा वो? हैं? एक साथ दिया जाता है 2.5 किलो, तो उसमें और कौन सी उसकी ज़रूरत पूरी कर लेगा? उस दिन सिर्फ उसकी इस ज़रूरत को पूरी रखा गया है, सामने रखा गया है, तो इसके खाना का इंतज़ाम हो जाए। तो आदमी उसी दायरे अमल में कोशिश करे। खाना मुहैया करना है, आपके पास पैसा है, बाज़ार में गए, आपके दिल में जज्बा है, नियत सही, इखलास है, ख़रीद कर लाए, पहचान की, उसके घर पहुंचाया, तो एक मिस्कीन की दिलजोई हुई, खबरगिरी हुई, आपने के दिल में उसके लिए मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ, इतना स्ट्रगल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ें उसी मसलहत के फ़रेम में है कि मिस्कीन की खबरगिरी। तो अगर आप नक़द देते हैं तो उसमें क्या है?
पैसा है ना, जा करके किसी को तनख्वाह दिया, दे दिया, जाओ, ख़त्म। तो इतना सारे मसाइल इस मसले के पीछे हैं कि जो गरीब की खबरगिरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मसला भी सामने रखना चाहिए। अब मुसीबत ये है कि अगर सही सोच और फ़िक्र हो तो आदमी बिल्कुल नस के दायरे में रहे, और नस इतना काफ़ी और शाफ़ी है कि जितना उतने मसला निकले उसे बता दें। फिर आप उसको, बकरी को बीमार नहीं होना चाहिए दूसरे के लिए, बस वो जितना बता दिए उस पर बाउंड रहो। जितने उसे मसाले हैं, ज़रूरत है, फरीज़ा है, सुन्नत है, वाजिबात है, सब अदा हो जाते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उलझन पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा, इतना सिंपल आसान सा मसला है कि 2 मिनट में बता दो। अब 2 मिनट को खींचे जा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी उलझन में हैं, और हर आदमी बगैर इसको कि भाई नस के साथ हमारा क्या तामुल होना चाहिए उसको नज़रअंदाज करता है। मसलहतें जो हैं शरीर को नज़रअंदाज करता है। अपनी मनमानी पानी के बुलबुले की तरह हर आदमी फूटा पड़ता है। बुलबुला देखा पानी का? तो हर आदमी ऐरा गहरा बुलबुला की तरह फूट रहा है पानी। क्या ज़रूरत है इसकी? सिंपल सा मसला बताओ, किनारे पर हो जाओ। आपको शरीयत के सिलसिले में ज़्यादा उतने फ़िक्र करनी है जितना नस कहता है, उससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है उलझन पालने की। तो अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि सदक़ा फ़ित्र निकालें और उसको मुस्तहिक़ों तक पहुँचाएँ, और उसका सवाब जितना हो सकता है अल्लाह ताला सवाब भी पूरा हमको दे अता करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।